of the Ludhiana chapter of AROI India. She also has been a member organizing committee for the certificate course on radiation safety in the year 2002 at Ludhiana. She has a teaching experience of DNB candidate from last 25 years, and she has organized many national, regional CME program, workshop, and the different conferences. Madam, I just want to introduce our director, sir, Dr. GD Gupta. He's also online. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Welcome, madam. And Dr. Saurabh Kose, he is the associate professor in our department. Yeah, so it's over to you, ma'am. You can start. Okay. Good morning, everybody. I would like to talk. मैं इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में बोलूं कि पंजाबी में? All the three languages are comfortable for us. Okay. So I would like to tell everybody about the basics of radiation. What is radiation oncology, and where all it is used. Madam, you are mute, I think. Hello. Mr. Jaspal, please just have a look. I think madam's microphone is in the mute mode. All Madam. Yeah. Okay. Yeah. Is it okay? No, madam. Okay. So radiation is a very new subject to everybody. So I would like to tell everybody about a basics of radiation oncology. So radiation is two types of radiations we see, and basically what radiation is. Previous slide. Slide का नीचे. Yeah. So radiation is energy in motion. It is either in waves or in particles. And there are two types of energy, two types of radiation. One is ionizing radiation and one is non-ionizing. I think all the students would know exactly what is ionization. So whenever in a particle, in a molecule, if we remove electrons, so what we get is a very unstable electron, unstable atom. So in that, if we remove an electron from an atom, what we get is a radiation. And these radiations, ionizing radiations are of two types. They can be particulate and alpha radiation and beta radiation. And secondly, you get wave type of radiations, which are X-rays and gamma rays. So these days mainly used are the X-rays, which is used for diagnostic purposes. Like we do all the X-rays, CT scans, and gamma rays are used for treatment purposes for therapeutic uses. And ionizing radiations are in the form of radio waves, microwaves, infrared, lasers, and radars. So now let's come to radiotherapy. In radiotherapy, we use ionizing radiations to treat all types of cancers. And this radiotherapy, we have two types of radiotherapy. One is external beam and one is internal. Now, external beam of radiation is where the
there is a difference, there is a distance between the machine and the patient, right? So the patient lies on the machine and the radiation is on and the radiation reaches the patient's body. And this is delivered by the machines called linear accelerators, or a short form known as LINACs. And internal radiation is in the form of brachytherapy, where the source, the radioactive source, means the unstable material is put in the close contact of the patient's body, whether it is a cavity or whether it is the surface of the patient's body. And intracavity, that is why it is known as intracavity, because you place the source very close to the body area which has to be treated. So radiation therapy is a combination sometimes of external and internal beam. Not everywhere we use internal radiotherapy, but yes, more than 80% of cases, only external beam is used. Now, radiation is used in about 50% of all the cancers. Sometimes in the due course of treatment requires radiotherapy. And about 2/3 of these cancers intent is curative. I mean, we want to achieve a cure in these cases, whether we combine this with medical oncology, that is with medicines, or with you combine this with surgery, or at times we have to use all three modalities, that is radiotherapy, chemotherapy, and surgery. So there we achieve a cure in these patients. Many cancers, like breast cancers, there is 100% cure if detected early, and all three modalities are used. Some head and neck cancers, prostate cancers. So all these cancers are curable. But there is a very big but here, because these have to be detected at a very early stage. Now, the curative role of radiotherapy, I said, are in head and neck, breast, esophagus, prostate, bladder, Hodgkin's disease, medulloblastomas, carcinoma lungs, some brain tumors, and some palliative radiation. Palliative means where we have to just comfort the patient, where we know we cannot cure the patient. What happens is that suppose a patient has got a stage 4 disease, that is, the disease is it is spread all over the body, into the bones, into the brain. So to improve the quality of life, what we do is we give palliative radiation so that we can improve the quality of the patient's life, whatever life that remains. Now, what is radiation oncology? Radiation oncology is actually not a one person's job. It is a teamwork which consists of the oncologist, the medical physicist, and the technologist. So what happens is कि अगर suppose डॉक्टर ने की किता बहुत प्रिसीजन नाल अपनी प्लानिंग कीती है, एंड आई एम वेरी प्रिसाइज, मैं 2 मिलीमीटर का ध्यान रख के मैं डिजीज को आई हैव प्लान्ड द पेशेंट, but my medical physicist does not put the beams properly, and so as my technologist ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इतनी अच्छी तरह प्लान करूं. So it has to be a very good coordination between all three, members of the oncology department. So now, what happens is when a patient comes to me in the OPD, I have to decide what has to be done. So treatment decision is very important, and it depends on the oncologist. So I decide what has to be done, where has to be done, and how it has to be done. Then the patient is taken, patient is immobilized, and it is taken for imaging. That is, we do a CT scan to see precisely where we have to treat,
what area that has to be treated, and how much area that has to be saved. Okay, so that is done with the treatment planning. Now I hope you can see the third image, जिसमें कि एक CT scan image है, and that red spot that you see is I want to treat that area. Whereas around that you have the major vital structures, that is the lungs, the spinal cord, where I don't want any disease to go. I don't any radiation to touch the lungs and the spinal cord. So here comes the planning part, how I deliver my radiation to that precise area, whereas at the same time save the normal areas and save the lungs. That is done by the planning. So after I have planned and contoured, I approve the plan and I do a quality assurance so that whatever I'm delivering is reaching there and whatever I want to save is being saved. Then the patient is passed on to the radiotherapy technologist, where the treatment is done in fractions, whether it is 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, or 5 weeks. So the patient comes daily, and it is the technologist now who holds the patient and has to treat the patient daily. Then, of course, after the treatment, you have a follow-up care. So treatment decision. Now I assess the patient and I have to decide whether मैंने उस patient को conventional radiotherapy देनी है. That is the first image. If you can see the first image, in that you see that the radiation will be delivered to the whole block, right? The whole block will get the same amount of radiation, whether उसमें कोई vital structure आ रहा है या नहीं आ रहा है. That is like it will give the similar dose to the whole area. Then in the second image, you see that is 2D conformal planning. Here I can plan out, like you see how you chisel it. आप dose को monitor कर सकते हो कि आपने उस dose को कहाँ पे कितनी deliver करनी है. You can see that जैसे पत्थर को तराशते हैं वैसे ही वो आप अपनी बीम को you can modulate that beam कि मुझे इस एरिया में इतनी चाहिए और इस एरिया में बिल्कुल नहीं चाहिए. Then in the third, it is further you can decrease dose to the normal structures. Whereas in the fourth image, you can actually contour the patient to get a dose delivery to the shape of the tumor. You can see that man, and whereas all around that we can limit our dose, and that is better understood in the next figure, where you see 2D is the the outermost, you see the whole square getting the same amount of dose. Then is the 3D planning. There is some contouring, somewhere you can limit the dose, and then of course the intensity modulated, जिसको हम IMRT बोलते हैं, that takes the shape of the tumor, so that you can just save all the sensitive organs around the tumor and deliver maximum dose to the affected area. Now, how do we proceed for radiotherapy? First and foremost is the immobilization. We have to make sure that our patient is totally immobilized at the time of treatment. क्योंकि ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलता है, so we have to make sure that every day the patient is, we can, get the same position, and we have to have the same area where it has to be treated. So we have to make sure that the patient is totally immobilized and the patient is not able to move. So the first figure is showing you a head and neck cast, and the second one is showing you the body cast, where the area, according to the area that has to be treated, we make the cast of that part of the body. After that, we take the patient to the imaging area, which can be either CT scan, PET scan, or MRI, and we can fuse all three.
And the patient is again taken to this place with the cast in that treatment position so that we can reproduce whatever we have planned. And the second image you see, these are the images where I will contour my structures. The first image you see is a breast cancer. That red line you see is the area that the breast I have to treat. You can see a heart in the blue area, which I want to save. And then I have contoured the lung, which I want to save. So the area that has to be treated is red area, which is the breast. So this is how the contouring is done by the oncologist. And these are the images you see in the anterior and the lateral view. Then the second image you see is a head and neck cancer, where I have contoured the disease area and the neck nodes and the normal structures which I want to save. So here I don't know if you are able to understand, I have the spine, I have the oral cavity, I have the mandible, which I have to save. At the same time, deliver maximum dose to the cancerous part of the body. Then comes the planning by the physicists. So the physicist then takes over my plan, and I tell him or her that this is the dose I want at this area, and this is the dose where I don't want any dose. So then they put in these multiple beams. Those yellow beams that you're seeing is the radiation which is going to be delivered through those angles of the body. And then we get a proper dose area where I can get maximum dose to the cancer and least dose to the normal structures. So this is the machine where then now after planning the patient is brought in and then it is put on the treatment to reproduce the position as during the simulation and fixing the ORFIT cast. You see we reproduce everything that we did on the CT scan table, and we match all our markers so that we can reproduce that daily. And then imaging is again done on the treatment position to match what I've planned and what is on the machine. And then in the fourth image, you see the treatment is being executed. So now to conclude, I would like to tell you that since it's a teamwork and everything is changed to one another. So एक भी कड़ी अगर इसमें से missing हो गई तो the whole plan of our treatment goes, and it's a waste of what all we did. So it is a chain reaction which you see by assessment of patient, then you decide what has to be done, then you prescribe the treatment protocol, and then the patient is immobilized. Immobilization, then simulation is done in the same place, followed by planning, followed by treatment information and transfer, then the patient setup, and then, of course, the treatment delivery. Thank you so much. Yeah, thank you, ma'am. So, ma'am, I would like to thank you about giving the information about type of radiation and the different uses of radiation, as well as the role of the radiation in the treatment, as well as the decision how we are going to make for the treatment. You have also given information about the different instruments which are used. Either it is your CT scan, PET scan, or the MRI. Yeah, Dr. J.D. Gupta sir, just want to ask something. So, Yes, sir, please. good morning, madam. I want to know that only nowadays number of the questions and number of the persons, they are confused regarding the radiation and travel of the 5G. So can you on a COVID, you can say like a disease, and it can be spreading due to the radiation. So can you highlight it, madam, ki what is the role of the radiation in COVID therapy? Or there is no documented role yet. There is no documenting. No studies have been done.
No or studies. any effect of the radiation by these are the mobile tower, or you can say 5G trial like that. So, 5G trials, these are the radiations which we see are affecting the birds. But of course, humans, yes, constantly, if they are exposed to radiation, yes, it can lead to cancer later in 20, 30 years in life. I mean, no recent, effect. It is a late effect. So, madam, I want to know that the radiation also affected the immunity of the humans. It depends on which area you're treating. I mean, immunity then again depends on your, your bone marrow basically. You would, so area being treated, suppose I'm treating the bones, which are the blood forming areas, of course, we can have a decrease in the HB, TLC, and platelets. But if you say overall immune, no. Immunity, no, it does not. Yes, of There is course. the But of course, if the patient is already treated with chemotherapy, the patient has already undergone so much treatment. So the overall immunity, yes, it can decrease. It can decrease. because the number of the WhatsApp messages and some of the speeches given by the even some of the doctors, they are say that due to the immunity is the gradually reducing, so that the effect of the corona, this is the third wave, it can Yes. be increasing and too much harmful to the human also. So see, overall, there are so many cosmic radiations that we are exposed to. Everybody is exposed, whether it is sunlight or otherwise. So these are the radiations which are within the normal limits. But so in corona, I don't think radiation has any other this thing. But immunity, yes, you have to have a good immunity in your body. That's for any disease. I mean, whether if your immunity is not good, you may get bacterial infection, you may get viral infection. So that is a general statement. So very good information, madam. And because the number of the peoples, they are the spreading the things, और जो आज एक concept है कि if I send some of the message तो हम उसको 2 गुना बढ़ा कर की प्रो करते हैं, बिल्कुल, मतलब 3 times. तो इस बिल्कुल. चीज के लिए आपने एक बहुत अच्छा कहा, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, और मैं हाँ भी जी. चाहता हूँ कि इस टाइप की चीजें प्रमोट ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम आई फील दैट कि जो आज का युवक है वो आक्रामक बहुत जल्दी हो जाता है. अगर कहीं कोई टावर लग रहा है तो उसको पहले तोड़ो, क्योंकि उस एरिया में कोरोना बढ़ जाएगा. ऐसी घटनाएं और ऐसी दिमाग में चीजें लोगों के चलने लगी हैं. ये फिर गलत है. जैसे ये सिटी स्कैन का कई डॉक्टर्स भी देते हैं कि वी डोंट टेक द सिटी स्कैन एज ए फास्ट मूवमेंट. और एक तरफ ये मैसेज आता है, दूसरी तरफ एक और डॉक्टरों का कंसेप्ट एक आता रहता है कि इफ यू फील दैट कि आपको कोविड के कोई सिम्टम है तो विदाउट डिले यू कैन टेक द सिटी स्कैन आल्सो, कि कहीं कोई इन्फेक्शन इनसाइड ना हो. तो दोनों पहलुओं पर लोग इज द टू मच कंफ्यूज्ड कि अगर सिटी स्कैन कराते हैं तो आफ्टर द लॉन्ग टाइम इट इज द हार्मफुल. कैंसर जैसी बीमारियां को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं या वीक होते हैं. दूसरी तरफ एक लोग भयभीत हैं कि अगर नहीं कराते हैं तो आगे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ना फैल जाए और वो फिर ट्रीट करने के लायक नहीं हो. तो थोड़ा सा आई वांट दैट, आई नो दैट स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रैक, बट थोड़ा सा लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, बिकॉज दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द रेडिएशन, कहीं ना कहीं कि क्या Yes. करना I, चाहिए. बड़ा I will tell you. I will tell you. In the earlier times, आज से 20 साल 25 साल पहले जब मैंने एमडी करी थी, तो जो रेडिएशन की टेक्नोलॉजी थी, वेदर इट इज डायग्नोस्टिक, वेदर इट इज सीटी स्कैन, वेदर इट इज एन एक्सरे, they were very very primitive. These days you are having such lovely equipment that जो सीटी स्कैन है 1.5 मिनट में पूरा बॉडी स्कैन कर देता. ठीक है. आजकल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि 400 एक्सरे के बराबर है एक सीटी. Not right, which is not right. इसलिए Yes, I agree. It is about 60 to 70 X-rays, but it is within the permissible limits of the body.
आप एक सीटी स्कैन डेली तो नहीं कराने जा रहे, एक बार कराओगे, 2 बार कराओगे. So it is well within the permissible limits of the body. We are radiation workers, you know. I have been in this field for the past 25 years. पहले जब हम जो बॉडी जो मशीन हम यूज करते थे, that was cobalt 60. That cobalt 60 had a live source. आप समझ रहे हैं, लाइव सोर्स का मतलब है एक कोबाल्ट एक मटेरियल होता था जो मशीन के अंदर होता था, जो कि ऑफ पोजीशन में भी रेडिएशन इमिट करता था. हम लोग ने उन मशीनों पे काम किया है, ठीक है. सो यू सीन वी यूज अ TLD बैच so that our 3 monthly radiation is body radiation is monitored. And nowadays जो ये linear accelerator है, ये क्या है, ये एक मशीन है जिसमें की रेडिएशन जनरेट होती है only when it is on, whereas that time there was radiation 24 hours emitted whether even in the off position. So similarly जो equipment diagnostics के लिए भी आया है, they are very good. So they are not so harmful. अगर आपने लाइफ टाइम में 2-3 बार अगर सीटी करवा भी लिया तो it's not going to harm you anyways. वही मैडम, कई बार क्या जो टीवी स्क्रीन पर भी बहुत से डॉक्टर्स आ रहे हैं एंड नंबर ऑफ टाइम दे गिव द स्टेटमेंट, वो दिमाग में लोगों का सीधा जाते हैं. तो जिस तरह की चीजें चल रही हैं एंड बस एक कुछ ये और जानना चाहते मैडम, कोविड पेशेंट अगर कोई है और उसको रेडिएशन थेरेपी अगर कोई दी जा रही है पैरेलल, मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है एंड रेडिएशन थेरेपी अगर दी जा रही है, तो जो कोरोना है उस पर क्या इफेक्ट आता है? मतलब जो रेडिएशन थेरेपी उसको प्रोटेक्ट करती है या उसको क्योर करने में हेल्प करती है, क्या करती है? नहीं सर, ऐसा है कि अगर ड्यूरिंग थेरेपी हमारा कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो वी इमीडिएटली स्टॉप द ट्रीटमेंट. We send the patient away for 14 days. The patient comes back to us with a negative report, and then we resume our further treatment. Because already the immunity is less, we may harm the patient more than doing any good to the patient. तो आज की डेट में जो मान लीजिए रेडिएशन के लिए कोई पेशेंट आता है तो आप रिपोर्ट मतलब दिस इज कंपल्सरी, ओके? We get a RT-PCR done before starting the treatment, and ideally in the middle of the treatment also we should get a report done, because patient का इलाज almost 5 weeks तक चलता ही चलता है और हर फ्रैक्शन के बाद वो घर जाता है, वो लोगों से मिलता जुलता है. So you know, our technologist as well as the patient himself or herself is at a risk, you know, because हमें handle करना है patient को daily. So no doubt in those days radiation therapy is the going day by day, highly technically sound, and the number of the good machine equipment, not Yes. only for the patient but the protection, those person who are the handling like the Right. doctor, assistant, everything is the there. आपने बताई है कि पहले जो कोबाल्ट होता था कंटिन्यूअस रेडिएशन दे रहा है. Yes. एक लास्ट से पूछना चाहते मैडम, जैसे जो कोबाल्ट वगैरह पहले थे, या आफ्टर द यूज ऑफ द मशीन जो हमारे रेडिएशन के मटेरियल उसके अंदर होते हैं, तो जब मशीन मान लीजिए हमारी अनयूज हो गई या किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो इसको भी आप डिस्पोज करने के लिए कोई प्रोसेस ऑप्ट करते होंगे? Yes, it is a big process, and it is very important to decommission. You know, first we have to commission. We have to commission the machine. It is an AERB. From the BMRC, we have to take all certificates. And since cobalt जो था, वो एक live source था, तो वो एक nuclear reactor से हमारे पास आता था. You know, it is a cobalt 59 या nickel 60 जो होता था, उसको न्यूट्रॉन से आप बम्बार्ड करते हैं to make it cobalt 60 into a radioactive material. So since it is radioactive, so you just cannot leave it. You have to return it back to the nuclear reactor. You cannot. It is a decommissioning process. It is a huge process. पूरी safe में उसको. It is multiple things are being, steps are there to decommission the whole machine.
So thank you very much, madam. And you have justified the things very simple and very useful to the student. So on the panel, number of faculty members, number of the students, बहुत बार हमारे जीवन में हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी होती है बहुत सारे क्वेश्चन जानने की। जब हाई स्कूल में ही पढ़ते थे मैडम क्यूरी, जो कि रेडिएशन पर जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया है, और जहां तक मुझे याद है कि वो रेडिएशन के ही कारण खत्म हुई थी, बट जो उनके उन्होंने जो काम करके गए हैं, आज लोगों को वो जीवन बचाने में काम उपयोग हो रहा है। तो अगर कोई ऐसे सवाल बच्चों के दिमाग में है तो यू कैन अनम्यूट करिए अपने आप को और यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें हैं जो दबी हुई रहती हैं। कई बार ऐसा होता है हम किताबी ज्ञान तो कर लेते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली जब सोचते हैं तो सोचते बस वो दिया हुआ है। तो रेडिएशन थेरेपी, आई नो दैट कि हमारे यहाँ मैडम भी फार्मास्यूटिकल रेडिएशन एक चैप्टर होता था, तो ओनली ऑप्शनल उसको पढ़ लेते थे। नाउ डे इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज सम ऑफ द डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योर करने के लिए रेडिएशन थेरेपी को ला रहे हैं। बट आफ्टर ऑल यही है कि इट इज रिक्वायर्ड सम ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू क्वालिफाइड पर्सन एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो उतनी फैसिलिटीज नहीं आ पा रही हैं। बट इसके बाद भी अल्सरोजेनिक टेक्नोलॉजी से लेकर के जहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि पहले होता था अल्सर कहाँ है, लेकिन आजकल इतने फास्ट ट्रैक पर सिस्टम है, तो हम लोग सिंपल सा समझाते हैं कि जब एक टायर ट्यूब हमारा पंचर हो जाता था तो उसको चेक करने के लिए जब गांव में होते थे मैडम, तो लाल मिर्च के सीड डाल देते थे। उस समय कि आप साइकिल का पंचर ठीक नहीं करा सकते, जब हवा भरते थे तो वो सीड जाकर के उस होल के आप आसपास चिपक जाता था। तो उसी टेक्नोलॉजी पर कि हमारे पास रेडिएशन के जहां हमारे इंटेस्टाइन में कोई अल्सर या लीकेज या कोई कट्स वगैरह हो जाते हैं, कि वहां से रेडिएशन निकलता है, डॉक्टर इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ द गुड थिंग इज द गोइंग ऑन। और आपने समय दिया हमारे बीच में और हमारे इन्विटेशन को स्वीकार किया। मैं तो चाहता हूं जब खुले तो फिजिकली हम एक अच्छा सा एक लेक्चर रखें आपका, बिकॉज आई नो दो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड पर्सन हैव द लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इतना उसको सिंपली लेते हैं, इतना सिंपल होता नहीं है। जैसे एक कैंसर जैसी बीमारी के लिए जिसका उपयोग हो रहा हो, तो जो बच्चे या स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट करें एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इफ एनी। अदरवाइज आई गिव द ओवर टू द मिस्टर अमित जी फॉर द vote of thanks and summarize it. Yeah, any student, if you have any query, you can ask, or you can write in the chat box. I'll ask the question from the madam. Good morning, sir. I have a question. Yeah, Gurleen, please. सर, मैंने सुना है कि जो कोरोना है ये कुछ खास नई चीज नहीं है। अखबार में पढ़ा था, वो कहते हैं कि ब्लड क्लॉट्स के लंप्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से जो हमें सांस लेने में मुश्किल आती है और फीवर होता है। तो इसका ट्रीटमेंट तो हम एस्पिरिन दे के भी कर सकते हैं, तो इसको इतना क्यों बढ़ाया हुआ? अभी कोरोना है, इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 2-2 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ये आप बता सकते हैं? मैडम से पहले मैं बोलना चाहता हूँ गुरलीन जी की जगह। गुरलीन जी, मैडम आपको टेक्निकल जवाब देंगे। ये आपने कहाँ से सुन लिया, पढ़ लिया? यही तो मैं बात कर रहा था अभी। इसलिए कोई भी भ्रम नहीं फैलाएं कि एस्पिरिन जो है कोरोना को अगर ठीक करती होती तो डॉक्टर हमारे पास प्रवीण कौर जैसे पैनल पर बैठे हुए हैं और पूरी कंट्री में हजारों डॉक्टर लगे हुए हैं। तो बेटे ये इतना नहीं है। अब आपको मैडम आपको और अच्छा सा जवाब देंगी। तो कोई भी इतनी सरल चीजें नहीं है, और ना ही ऐसे भ्रम स्वयं मन में रखें और ना ही इस तरह की चीजों को प्रेसिपिटेट करें। नाउ मैडम आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा जस्टिफाई कर दें गुरलीन जी को। ऐसा है, मैं एक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पल्मोनोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ मेडिसिन पर्सन। पर मैं ये कहना चाहूंगी बेटा कि ये कोरोना जो है वो आपकी आर्टरीज और वेन्स को कोरोना नहीं करता है, कोरोना नहीं वो करता है।
ये इट इज द बाय प्रोडक्ट, उसकी प्रोटीन्स जो रिलीज होती हैं, जो सेल्स होते हैं वो नाड़ियों में जाके चिपक जाते हैं ड्यू टू द डिजीज। ठीक है, तो एस्पिरिन ट्रीट उसके लिए होती है, ना कि कोरोना के लिए। सो दीज आर वेल, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट, पर ये आपकी थिंकिंग गलत है। नो मैम, वो इटली में उन्होंने पोस्टमार्टम किया था कोरोना के पेशेंट का, जब वो डेथ हो गई उसकी, तो तब पता चला। उसका साइड इफेक्ट है ना, ड्यू टू कोरोना व्हाट हैपेंस इज कि बॉडी में प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी आर्टरीज में जाके आपके सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, आपके सेल्स चिपकने लगते हैं वहां पे। ठीक है, और वो सेल्स जो है वो नॉर्मल चिपकना नहीं होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से चिपकते हैं, जो कि हम एस्पिरिन से ठीक करते हैं। दैट इज समथिंग एल्स, दैट क्लॉटिंग इज समथिंग एल्स। तो ये एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं इस डिसीज का? साइड इफेक्ट नहीं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं बेटा, वो आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है कोरोना, नॉट ओनली लिवर, हार्ट, ओनली लिवर, किडनी, एवरीथिंग इज बीइंग अफेक्टेड विद कोरोना। ये तो एक हार्ट की स्टडी आई है, ये तो इटली वाली। मैम ये तो मतलब न्यूज है ना, अभी WHO ने मना किया हुआ था कि किसी भी डेड बॉडी का, कोरोना वाले पेशेंट का पोस्टमार्टम करना मना है, तो पर वो इटली वालों ने कर दिया। वो कहते चाइनीज वालों को पता था कि इसका यही रिजल्ट मिलने वाला है हमें अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे तो। बेटा ये अब मुझे नहीं पता, सब कंट्रीज का अलग अलग वो हाँ है। गुरलीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप कह रही WHO की, ये कहाँ लिखा है कि पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए? पहली चीज है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए पोस्टमार्टम किसका किया जाता है और किसका नहीं किया जाता है। पोस्टमार्टम पर्पजफुली किसी चीज के लिए किया जाता है। और जो आपने कहा है कि देखिए, कोई भी जब डेड होता है तो मैडम ने ऑलरेडी कहा है कि जो हमारे पास RBC घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, तो आफ्टर ऑल जब उनके पास ऑक्सीजन पहुंचनी नहीं है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो रहा है, तो जो लंग्स पर एक काम कर, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर एक्सपर्ट हूं कि किसी भ्रम में नहीं आता हूं, और इतना जरूर एक्सपर्ट हूं कि जितनी व्हाट्सएप और मीडिया से जो ज्ञान ले रहे हैं वो इतना आधा अधूरा ज्ञान है, जो किसी की जिंदगी बचाए या नहीं बचाए, लेकिन कितनों को खत्म कर देगा इसकी गारंटी है। बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि एक नहर के किनारे पुल है, वहां एक बाबा है, वो भभूत दे देता है तो ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, कोरोना ठीक हो जाता है, सैकड़ों उधर जाना चालू कर दिए। फिर एक कह देते हैं कि आप एक चीज खरीद लीजिए, एक गोली, तो 2 गोली सुबह शाम खाइए, उसका मार्केट उठ जाता है, अरबों रुपए की गोलियां बिक जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी भ्रम में, किसी भी भ्रांति में, किसी की फालतू चीज में ना पड़े। कोरोना एस्टेब्लिश चीज हो चुकी है, वायरस प्रूव्ड हो चुका है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर काम करता है, वहां पर जाकर के अपना स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और उस स्ट्रक्चर से क्या होता है, जब हमारे लंग्स काम करना कम कर देते हैं, धीमे धीमे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा जो बॉडी का सिस्टम है एनर्जी लेवल पर टंगा हुआ है, अगर वो एनर्जी लेवल हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है, हार्ट पर काम होता है, अल्टीमेट तो किसी को कलेप्स होना ही है, चाहे हार्ट अटैक से खत्म हो, चाहे किडनी फेल से खत्म हो, चाहे लंग से हो। कुल मिलाकर के ये है कि ऑर्गनों का धीमे धीमे काम करना कम हो जाता है, और जिस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है वो उस पर ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, और उसका कलेप्स होकर के वो खत्म होना तय होता है। तो ये तय चीज है। इस चीज किसी भी भ्रम, जो WHO और जो गाइडलाइंस हैं, लोग लिख लिख करके उनको एडिटिंग कर करके निकाल देते हैं, आधा पढ़ करके आधा रिकॉर्ड करके, उसके मायने क्या है? अगर उस व्यक्ति ने, यदि किसी ने किया है, और एस्प्रिन एक ऐसी चीज है, एस्प्रिन ब्लड को आपका डाइल्यूट कर देती है, चलिए फिलो को थोड़ा बहुत राहत दे देती, गर्म पानी पीने से वायरस नहीं मरता है, लेकिन गर्म पानी पीने से जो थ्रोट में हमारा कफ है ये पतला हो जाएगा, पतला होके पेट में जाएगा। अगर हमारी इस कैविटी में कोई वायरस जैसी चीज आई है और अंदर वो उसके थ्रू चली जाती है, तो ठीक है, थोड़ी राहत मिल जाती है, बट दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दीज आर द प्रिकॉशन है हमारे, और इन प्रिकॉशंस को हमें लेना चाहिए ताकि किसी कारण से ये बीमारी ना हो। बट नंबर ऑफ थिंग की मिथ है, भ्रांतियां हैं,
ना ही इन्हें सुने, ना ही इन्हें प्रमोट करें, ना ही इन्हें थंब दिखाएं। कोई डाल देता है तुरंत हम दिखा देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है इसने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। वी आर द फार्मेसी पीपल्स, तो हमें बिल्कुल सटीक बात पर काम करना चाहिए क्योंकि हम एक हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट हैं। और इस समय इस पार्ट के लिए आवश्यक ये है कि जो चाहे योगा हो, चाहे हमारा आयुर्वेदा हो, चाहे हमारा एलोपैथी हो, जो आयुर्वेदा है या योगा है ये प्रोटेक्ट करने में काम कर सकता है, लेकिन होने के बाद आप सोचो ट्रीट हो जाओ, मैं अपनी तरफ से कभी हाँ नहीं कहूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो एलोपैथी और डॉक्टर की चिकित्सालय। एक भी दिन का बेड, एक भी दिन का भ्रम आप किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट बिल्कुल मेरा ठीक एक है। सिंपल सा सिस्टम है कि इसको स्वीकार करते हुए जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, आज लोग कहते हैं पैसे कमाने के लिए बैठे, मैं आज यहाँ बैठ करके कहता हूँ, मैंने एक बार कहा भी है, डॉक्टर जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। कौन सा ऐसा डॉक्टर है, मान लो कोई कहता है डॉक्टर मैं 2 लाख रुपए ले लूं, तो क्या वो पेशेंट को मारना चाहता है? नेवर। क्योंकि वो पैसा ले नहीं ले, कमाए नहीं कमाए, लेकिन वो पेशेंट को बचाना चाहता है, पूरी ताकत लगा देता है बचाने के लिए। इसलिए किसी भ्रम में नहीं पड़े, ये मैं कहता हूं दावे के साथ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करता। अगर एक मान लीजिए एम्बुलेंस वाला है, 2,000 की रुपए उसने 40,000 ले लिए हैं, तो क्या वो पेशेंट को खत्म करना चाहता था? हाँ, उसकी नीयत ठीक नहीं थी कि उसने पैसे ज्यादा ले लिए, लेकिन ये नहीं था कि वो पेशेंट को नहीं पहुंचाना चाहे। इसी तरह मैं डॉक्टर का कहता हूँ, हॉस्पिटल का कहता हूँ कि हो सकता कहीं पैसे ज्यादा लग रहे हो, ले लिए जा रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि वो पेशेंट को मारना चाहते हो। नेवर नेवर नेवर। वो हमेशा उसकी मदद करना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, अपने डॉक्टर्स को, अपने प्रोफेशंस को, सभी को वैल्यू देनी चाहिए। और जो न्यूसेंस चालू हो रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, अगर पेशेंट खत्म हो जा रहा है डॉक्टरों को गाली गलौज कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट करें। आप देखिए वो कितना काम कर रहे हैं, 18 से 20-20 घंटे आज हमारा डॉक्टर काम कर रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। बीइंग अ फार्मासिस्ट हम सबको इसमें काम करना चाहिए, भ्रांतियों को कम करना चाहिए और लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थोड़े दिल की बात थी, मैं क्षमा चाहूंगा मैडम, बट एक Thank मन you था so तो मेरे को much. कहना पड़ा। Thank you for supporting me. थैंक यू वेरी मच। Okay. थैंक यू बेटे। कुरलीन, ये सारे मिथ को निकाल दो तुम अपने मन से, ठीक है? सर ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ बड़ा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि नहीं डॉक्टर नहीं, को तो वही बात मैं क्लियर कह हो रहा हूँ, जाती है। तुमने ये क्वेश्चन पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति ने, मेरे लड़के ने पूछा था बिहार से, उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि लोगों को जो वैक्सीन की जगह जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ऐसे भ्रम हो सकते हैं, हम उसका पार्ट नहीं बने, ये बिल्कुल तय अपन कर लें, बस बढ़िया है। अगर किसी ने डाला है, हमारे पास आ गया, हमने देख लिया, ना तो हम उसको स्प्रेड करेंगे, ना हम उसको थंब दिखाएंगे, ना हम उसको दूसरे को सेंड करेंगे, क्योंकि कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लोग खराब चीजें डाल करके, आप देखिए, आप यूट्यूब पर क्या हो रहा है, अंदर मैटर कुछ और होता है, उसकी ऊपर स्क्रीन कुछ और होती है, करोड़ 2 करोड़ उसके दिखा करके पैसे कमा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हम क्यों देख रहे हैं? तो इन सारे भ्रमों से बेटे हमें उठना पड़ेगा। सॉफ्ट मीडिया ने लोगों को कचरा कर दिया है। आधे पेशेंट, ज्यादा पेशेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इन चीज, आज मैं नहीं कहता हूं भ्रष्टाचार नहीं है भ्रष्टाचार, लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट कभी नहीं करता हूं जो कि किसी चीज को नुकसान, पहले पहले सेल्फ पर काम करें। तो सेल्फ पर जिस दिन आप काम करो, आज मैंने मीटिंग ली, सबसे पहले मैंने एक योगा की काम करवाया। अगर मैडम एक जो मेरा ये था, मैंने पहले ही कहा कि ठीक नहीं होता है कि आप पूरी सांस खींचिए और जैसे आप गुब्बारे को भरते हैं ऐसे धीमे धीमे हवा छोड़िए, इससे आपकी लंग की एक्सरसाइज होगी। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इससे कोरोना ठीक होगा, हाँ ये जरूर कह रहा हूं कि आप में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन, थ्रोट की हमारी नसें और लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, जो आपको हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे।
तो ये हमें करते रहना चाहिए। हल्दी वाला दूध हम पीते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हम उसमें ऐड कर देते हैं कि उसमें काली मिर्च और डालिए। बीइंग टेक्निकल पर्सन, फार्मासिस्ट के जो पाइपरीन है, जो हमारी हल्दी है, हल्दी दूध में घुलती नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगर हम थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं पाइपरीन, तो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एक्शन बढ़ जाएगा। इतना हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कैंसर ठीक कर देगी। हाँ, कैंसर नहीं होने देगी अगर रेगुलर लेते रहो, और हो चुका है या होने की संभावना है तो थोड़ा सा कम कर देगी बस। लेकिन दवा तो दवा है, जो एलोपैथी है, जो डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं, उनका हमें लेना पड़ेगा। इसलिए आज प्रोटेक्शन जरूरी है। कई लोग तो ये कहते हैं मास्क जो लगाए थे उन्हें हो गया, कई कहते हैं जिनने 2 वैक्सीन लगाई थी उन्हें हो गया। तो ये सारी चीजों से ऊपर उठ के देखिए, वैक्सीन लगी है और हो गया डजंट मैटर, लेकिन उसका प्रभाव कम हो सकता है। आप अगर मास्क लगाए हैं तो कम से कम स्वयं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डबल मास्क लगाए हैं थोड़ा और ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। तो इन चीजों से हमें ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। तब आप देखिए कि आप कहीं ना कहीं अच्छा और स्वच्छ समाज को बनाने में सहायक हो सकते हैं। तो हम वी आर द फार्मासिस्ट, हमारे डॉक्टरों के साथ संवेदना है। और मैं इस मंच से कहता हूं कि भारत सरकार, या कभी मुझको लगता है मैं कुछ ना कर पाऊं, मैं सिर्फ पर्चा लिख और पढ़ तो सकता हूं, मैं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे डॉक्टर दिन रात वार्डों में काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तो हम भी अपनी जिम्मेवारी उठाना चाहिए। ये चीज तो मैं देखती हूँ। मैं एक एमडी रेडियोथेरेपी हूँ, पर जो एमडी मेडिसिन है, आप उनका हाल देखेंगे तो मुझे उनपे तरस आता है। आप हमारे आईसीयू इंचार्ज हैं, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आप उन्हें देखिए, 50-50 पेशेंट्स का राउंड लेते हैं पीपीई किट पहन के। आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते वो चीज को पहन के। हमारी नर्सेस जो है 6-6 घंटे की ड्यूटी करती हैं। बिल्कुल मैडम, मास्क लगाए हैं, शील्ड लगाए हुए, हम मास्क लगाते कहते कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वो बेचारे 8 घंटे उतारते नहीं है, उनको पता नहीं है क्या होता है। तो इस चीजों को हेल्प करें। ना खाते हैं ना पीते हैं, प्यास लगे तो पानी नहीं पी सकते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी गुड इंटरेक्शन, सभी को शुभकामनाएं। और एक सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी निगेटिव खबर पर अपनी सील ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं। ये मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि बहुत दौर ऐसा चल रहा है कि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। तो ओवर टू अमित जी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Hello. हाँ सत्य Sir, I have a question on radiotherapy. Yes. Madam, very good morning. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Madam, some patients are having subcutaneous cyst and ovarian cyst also. So apart from the tumor and cancer therapy using radiotherapy, these cysts can be treated using radiotherapy or not? Subcutaneous cyst or ovarian cyst? No, ovarian cysts are basically either to be removed surgically or treated by hormone therapy, right? And subcutaneous cysts, again, you require to remove it by surgery only. Yeah. Radiotherapy is not possible in this case. No. मैम क्या रीजन है मैडम इसके पीछे? क्योंकि ये जो सिस्ट होती है ये बेसिकली नॉन मैलिग्नेंट है। व्हाई वी वांट टू गिव रेडिएशन? एंड क्योंकि नॉन मैलिग्नेंट है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसमें वो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। ओके मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू। So, on behalf of ISF Corporate Pharmacy and Department of Pharmacy Practice, I would like to thank Dr. Praveen Kaur for accepting our invitation, and Dr. G.D. Gupta for gracing our participants. Thank you all. Thank you so much.